Dear students, in the previous lecture we have discussed about the organelle mitochondria. Before that we have discussed different organelles of the endomembrane system. We had discussed the function of each of them, and we discussed that endoplasmic reticulum was responsible for the synthesis of proteins and lipids. The Golgi is responsible for mainly packaging and processing all these products that are being prepared by endoplasmic reticulum. Then after, these products are further being digested, or the food products are being digested due to the presence of the lysosomes, which were separated from the Golgi complex itself. And lastly, whatever material is being made for storage will be stored in the region of the vacuoles. And thus, we have discussed four main organelles of the endomembrane system. Then after, we have started with the mitochondria. We said that mitochondria is known to be the powerhouse of the cell, because the main function of the mitochondria was the synthesis of ATP, which is the storage form of energy in all the living organisms. So ATP formation is going to occur by Krebs cycle and oxidative phosphorylation, which takes place in the mitochondria. So mitochondria was a double membrane bound organelle, in which outer membrane was smooth and the inner membrane had several infoldings, which were known as cristae. And we had discussed that this cristae will be responsible for increasing the surface area, as well as the cristae will be having the presence of a specialized enzyme, which was the F1F0 particles or oxisome, or you can say ATPase enzyme. So that we have discussed so far for mitochondria. Now we are moving on to the next organelle, and this organelle is known as plastids. So in the plant cells, where are these plastids present? They are present in the plant cells, as well as they are found in the euglenoids. जो euglenoids होते हैं, they also have the presence of these plastids. Plastids का main function होता है to have different types of pigments. The pigments which are going to give color to the different parts of the plant. जब हम plant को observe करते हैं तो हम देखते हैं that the leaves of the plant are green in color. फिर हम देखते हैं that flowers are of different colors. Some flowers are white, some are pink, some are purple, some are yellow. So there are different colors of the flowers also. So when we talk about these plastids contain different types of pigments. And on the basis of the type of pigment present, the plastids are of different type. कौन सा pigment present है उस plastid में, उसके basis पे अलग अलग तरह के plastids होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं where are plastids present. So plastids, they are found in the green plants and euglenoids. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनमें प्लास्टिड्स होते हैं. और इनके अलावा euglenoids is also one category which is having the presence of the plastids, because euglenoids can also perform the process of photosynthesis. So what are these plastids for? The plastids contain different type of pigments. So what do plastids contain? They contain different types of pigments. जैसे कि हम प्लांट में बात कर रहे हैं क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है जो प्लांट के सेल्स में प्रेजेंट है. तो ये पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है? पिगमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड एन ऑर्गेनल, जिसे कहा जाता है प्लास्टिड. तो जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है वो एक्चुअली क्या है? इट इज अ प्लास्टिड विच हैज अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो वैसे ही अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं और इसीलिए ही अलग अलग तरह के plastids भी होते हैं. These plastids
are larger in size and thus visible in a light microscope. अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनल्स की बात की, इवन हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, तो हमने क्या कहा, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू बी स्टेन्ड बाय स्पेशल स्टेन लाइक जेनस ग्रीन, तो ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो विजिबल रहते हैं. पर इन द केस ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं उनकी साइज काफी बड़ी होती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर्स की साइज होती है, और इसी की वजह से प्लास्टिड्स जो होते हैं दे कैन बी ऑब्जर्व इवन इन अ लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज द साइज ऑफ द प्लास्टिड्स इज लार्जर. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट, on the basis of type of pigment present, there are 3 types of plastids. तो प्लास्टिड्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? अलग अलग पिगमेंट के लिए प्लास्टिड्स के नाम अलग है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं विच आर द टाइप्स ऑफ द pigments and which are the types of the plastids on the basis of the pigments. So the first one is known as the chloroplast, जिसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. तो जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. फिर आते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट plastids which are having pigments other than chlorophyll. क्लोरोफिल के अलावा जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, they all belong to which plastid? क्रोमोप्लास्ट. क्यों ऐसा? क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो चिलीज है वो चिलीज पहले रेड दिखते हैं, पहले ग्रीन दिखते हैं, ग्रीन चिलीज, एंड देन आफ्टर दे टर्न टू रेड. वैसे ही टोमेटोज जो होते हैं जब यंग होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, and then after the tomato changes to red in color. तो plastids जो होते हैं वो interconvertible होते हैं, मतलब a chloroplast can change into chromoplast. अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग plastids इसीलिए होती है क्योंकि जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर पिंक या ऑरेंज या रेड होता है. So this color is due to presence of which plastid? Chromoplast. Chromoplast is for all the colors except the green color. राइट तो अगर हम बोल रहे हैं कि ग्रीन चिली टर्न्स टू रेड, उसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट कैन चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, तभी तो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है. टोमेटो में भी ऐसा ही होता है, कलर चेंज होता है, इसका मतलब कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट. तो ऐसे चेंजेस पॉसिबल है. यहाँ पे हर एक कलर आ जाएगा, जैसे कि ब्रिंजल का पर्पल कलर है, वायलेट कलर है, तो उसका पिगमेंट होगा एंथोसाइनिन. वैसे ही टोमेटो का रेड कलर है तो उसका पिगमेंट होगा लाइकोपीन. वैसे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, बट इन शॉर्ट ग्रीन के अलावा जो भी पिगमेंट हो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? प्लास्टिड नेम इज कॉमन, क्रोमोप्लास्ट. प्लास्टिड नेम इज क्रोमोप्लास्ट. तो गलती ना हो, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट. एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज नोन एज leucoplast. The third type of plastid is known as leucoplast. Leucoplast जो होता है वो कोई भी पिगमेंट स्टोर नहीं करता. इंस्टेड इट इज अ प्लास्टिड विच स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल, जो रिजर्व फूड को स्टोर करे, स्टार्च को स्टोर करे, ऑयल को स्टोर करे, प्रोटीन्स को स्टोर करे. ऐसे फूड को स्टोर करने वाली प्लास्टिड्स जो होती हैं दे आर नोन एज leucoplast. So now we are going to discuss about all the 3 plastids in detail. हम तीनों के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की. So chromoplast contains all the pigments except
एक्सेप्ट क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल के अलावा हर एक पिगमेंट जो है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट इज फॉर प्रोवाइडिंग कलर्स to fruits and flowers। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स के जो वेरिएबल कलर्स होते हैं, येलो कलर होता है, पर्पल कलर होता है, रेड कलर होता है, तो ये सारे जो कलर्स है, डिफरेंट कलर्स, दैट इज ड्यू टू विच प्लास्टिड chromoplast। So here I am mentioning some of the pigments like anthocyanin, राइट। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, उसके अलावा ज़ैंथोफिल, मतलब उसी में इन्वॉल्व होता है ज़ैंथोफिल विच इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट लाइक लाइट येलो जैसा जो कलर होता है वो कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल के वजह से होता है। इट कैन रेंज फ्रॉम लाइट येलो टू ब्राउन कलर। ओके, इसके अलावा दूसरा पिगमेंट है लाइकोपीन, जो टोमेटो का रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू द लाइकोपीन। तो अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं। कौन से पिगमेंट्स हैं? एंथोसाइनिन इज द पिगमेंट, carotenoids are the pigment which include xanthophyll, lycopene is a pigment जो रेड कलर इम्पार्ट करता है। तो इसका मतलब है कि क्रोमोप्लास्ट में क्या इंक्लूड होता है? ऑल द पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल के सिवाय बाकी सारे जो पिगमेंट्स हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन द क्रोमोप्लास्ट। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर्स टू fruits and the flowers. So fruits and flowers have their beautiful colors due to presence of the pigments like these which are present in a plastid which is known as chromoplast. अब हम आगे बात करते हैं about the next type of plastid which is the leucoplast. क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे बिकॉज वी हैव टू स्टडी द होल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल, इसीलिए हम बाद में बात करते हैं। अभी ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है इट डज नॉट स्टोर एनी पिगमेंट्स, मतलब कोई भी तरह के पिगमेंट्स जो हैं वो ल्यूकोप्लास्ट में होते नहीं है। देयर आर नो पिगमेंट्स, they are in variable shape and sizes, साइज और शेप जो रहता है वो वेरिएबल रहता है इस प्लास्टिड में। और मेनली जब हम बात कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट की, सो दे आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। Amyloplast is the one which stores starch। मतलब हमने यहाँ पे कहा कि it does not store any pigment. Instead, the name of the leucoplast is dependent upon which type of food material does it store। वो कौन सा फूड मटेरियल स्टोर करता है उसके बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट जो है वो 3 तरह का है। ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ the different types of storage food material. Those plastids which are storing starch, that leucoplasts are known as what? Amyloplast। जैसे कि हम पोटैटो देखते हैं तो पोटैटो में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे छोटे ग्रैन्युलर पार्ट्स होते हैं, मतलब इट इज नॉट वेरी कंप्लीट स्मूथ सरफेस। Instead, the potato has presence of granules, and these granules will be the one which are storing the starch. इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ पोटैटो ही, इवन द व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं उनमें भी ऐसे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं और वो ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर होता है ये स्टार्च. तो अमाइलोप्लास्ट आर द वन विच विल बी स्टोरिंग द स्टार्च. सेम वे
Elioplasts are the one that stores oils or fats. ऐसे भी होते हैं जो ऑयल या फैट स्टोर करते हैं, ऐसे प्लास्टिड्स जो ऑयल या फैट स्टोर करते हैं, जैसे कि आपका कैस्टर सीड, राइट। कैस्टर सीड जो होता है उसके अंदर कौन से टाइप की प्लास्टिड होगी? इलियोप्लास्ट प्लास्टिड होगी, मतलब इलियोप्लास्ट टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि कैस्टर सीड में मेन स्टोरेज क्या होता है? ऑयल और फैट स्टोर होते हैं, जिसका हम अब बाद में ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट भी करते हैं यूज करने के लिए, तो वो हो गए इलियोप्लास्ट। एंड द थर्ड वन विच आर नोन आर एल्यूरोप्लास्ट। Eleuroplast which stores proteins. What does they store? Proteins. तो तीसरी तरह की जो प्लास्टिड है मतलब ल्यूकोप्लास्ट में वो होते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एंड एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं प्रोटीन। मेज जो होता है उसमें एक स्पेशलाइज लेयर होता है जिसे कहते हैं एल्यूरोन लेयर, और ये लेयर प्रोटीन स्टोर करता है। मतलब ल्यूकोप्लास्ट जो है उनका फंक्शन क्या है कि कोई भी तरह के पिगमेंट स्टोर ना करके फूड मटेरियल को स्टोर करना। अगर वो स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो अमाइलोप्लास्ट जो होता है पोटैटो में, व्हीट में। अगर वो इलियोप्लास्ट है उसका मतलब कि वो ऑयल स्टोर कर रहा है, और अगर वो एल्यूरोप्लास्ट है मतलब वो स्टोर कर रहा है प्रोटीन्स को, राइट। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख लेते हैं कि प्लास्टिड्स जो है वो क्या होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं, और प्लास्टिड्स आर मेनली फॉर इम्पार्टिंग कलर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। व्हाई? बिकॉज जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट हैज द पिगमेंट क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, जिसकी मदद से इट डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? पिगमेंट किस में प्रेजेंट है? प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप कौन सा हमने डिस्कस किया? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में क्या आएगा? ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को छोड़ के हर एक पिगमेंट, जैसे कि ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, राइट। कैरेट का जो कलर है दैट इज ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स। कैरेट का जो ऑरेंज जैसा कलर है that is due to pigment carotenoids. Xanthophyll provides slightly yellowish color. Anthocyanins are blue to violet color, variable. Lycopene is red in color. तो हर एक अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, पर प्लास्टिड एक रहती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और याद रखना कि प्लास्टिड्स जो है वो इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट कैन चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। दैट इज ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कोई पिगमेंट स्टोर नहीं करता। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो साइज और शेप में वेरिएबल रहता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ स्टोरेज। इन प्लास्टिड्स का एक ही पर्पस है, टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल। स्टार्च को स्टोर करता है तो अमाइलोप्लास्ट, ऑयल को स्टोर करता है तो इलियोप्लास्ट, प्रोटीन्स को स्टोर करता है तो एल्यूरोप्लास्ट। क्लियर? So as we have discussed about the two types of plastids, chromoplast and leucoplast. Chromoplast, which is having variable type of pigments, and when we talk about leucoplast, they do not have any pigments. Instead, they are for storing the reserve food material. Now we talk about the third and the most important plastid, which is the most dominant type of plastid found in all the plants, and this plastid is known as the chloroplast. तो ये जो प्लास्टिड है वो ग्रीन प्लांट्स में, यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है, वेयर इज इट एक्चुअली फाउंड? सो इट इज फाउंड इन द प्लांट सेल्स, फाउंड इन प्लांट सेल्स and particularly with cells, mesophyll cells of leaves. जो leaves होते हैं, the whole surface of the leaves, leaf lamina, तो लीफ पे जो सेल्स होते हैं उन्हें मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं? मेसोफिल सेल्स में होते हैं। एंड
दिस प्लास्टिक दैट इज क्लोरोप्लास्ट जो है that is having the green pigment chlorophyll, जिसकी वजह से जो लीफ है that appears green in its color, right? तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन. Where is it found? Mesophyll cells of the leaf. Now next thing, if we observe for this plastic that is क्लोरोप्लास्ट के बारे में और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है? तो सबसे पहले याद रखना है शेप, that they are of variable shapes like वेरिएबल शेप्स रहते हैं उसके, और ये शेप्स में आता है रिबन शेप, डिस्क लाइक शेप, either it can be cylindrical और इट कैन बी स्लाइटली वेरिएबल. मतलब आइदर ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, थोड़ा थिन लीफ लाइक मतलब डिस्क लाइक हो सकता है, फ्लैट हो सकता है डिस्क जैसा. वैसे अलग अलग शेप जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के पॉसिबल हैं. मतलब ये प्लास्टिक का जो शेप रहता है वो वेरिएबल रहता है. इफ वी टॉक अबाउट इट्स साइज, साइज जो होता है वो है 5 to 10 माइक्रोमीटर इन इट्स लेंथ. काफी बड़ा साइज है. जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, इट वाज हार्डली 1 to 4.1 micrometer, whereas the chloroplasts are slightly larger in the size, and the size of the chloroplast is 5 to 10 micrometer in its length. Okay, if we talk about the number of chloroplasts, number of chloroplasts is again variable. क्लेमाइडोमोनास जैसी अलगे, क्लेमाइडोमोनास इज अ सिंपल ग्रीन algae. इसमें सिर्फ 1 होता है, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल. मतलब एक सेल में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट है. जबकि जब हम मेसोफिल सेल्स की बात करते हैं, so the number of chloroplasts will be variable from about 30 to 40 chloroplast per cell. मतलब एक ही सेल में about 20, 30 या 35 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं. मतलब मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं. याद रखिए, अगर किसी प्लांट का हर्बेशियस स्टेम है, मतलब ग्रीन स्टेम है, तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा. But the number of chloroplasts is more in with cells which perform photosynthesis, and that is the mesophyll cells of the leaves. आगे हम बात करते हैं about the structure of the chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स हैं. आउटर मेम्ब्रेन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब 2 मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पे. आउटर मेम्ब्रेन which is going to be smooth, सेम एज इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा ही था, बाहर की बाउंड्री जो होती है वो स्मूथ होती है, एंड इट इज मोर परमिएबल टू मेनी सब्सटेंसेस, क्योंकि कई ज्यादा सब्सटेंसेस के लिए वो परमिएबल रहती है. जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, इट इज अगेन सिलेक्टिवली परमिएबल. तो इनर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी लेस होती है, वो सिर्फ सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही अंदर एंटर होने देता है. तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन जो है, दैट इनर मेम्ब्रेन विल बी ओनली सिलेक्टिवली परमिएबल. हियर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो हम डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन इज एनक्लोजिंग अ होल एरिया. इनर मेम्ब्रेन इज enclosing a whole area, and this area is known as stroma. So inner membrane encloses the matrix like region which is known as the stroma. तो स्ट्रोमा कहाँ पे है आप देख सकते हो कि ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन बताया है, ये इनर मेम्ब्रेन बताया है, पर बाकी की जो ये पूरी जगह है, दिस होल स्पेस is known as what? It is known as stroma. स्ट्रोमा में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सर्कुलर एंटिटीज मतलब ड्रॉ किया हुआ है,
जस्ट लाइक इट अपीयर्स एज अ स्टैक पाइल ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स के स्टैक पाइल की तरह दिखता हुआ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस हर एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड्स। क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड्स। सो इन द स्ट्रोमा देयर विल बी, मतलब स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है पूरा, तो स्ट्रोमा जो है उसमें आप देख सकते हो कि देयर आर सम projections. This coin-like structure, this single coin-like structure which you can observe is known as the thylakoid. क्या कहा जाता है? Thylakoids. And the stack pile of thylakoids, मतलब एक के ऊपर एक, जैसे कि हम 1 रुपी का कॉइन है तो उसका पूरा क्या कर देते हैं, पूरा एक थप्पी जैसा अरेंज कर देते हैं, राइट? तो वो पूरा जो हमने अरेंज किया है पिलर लाइक स्ट्रक्चर, दैट होल पिलर इज नोन एज द ग्रैनम। वापस से सुन लीजिए, ईच राउंड स्ट्रक्चर विच इज ऑब्जर्व लाइक अ कॉइन, दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड। एंड स्टैक पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स, स्टैक पाइल मतलब एक के ऊपर एक अरेंज, स्टैक पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स इज नोन एज ग्रैनम। एक है तो उसे ग्रैनम कहेंगे, बहुत सारे हैं इसीलिए ग्रैना, क्या कहेंगे? ग्रैना। सो देयर इज थाइलाकॉइड and the stack pile of thylakoid is known as granum. ये दो चीजें आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे मैं टर्म्स मेंशन कर रही हूँ, यू विल हैव टू राइट इट डाउन ऑन योर सेल्फ। थाइलाकॉइड और क्या कहा मैंने? ग्रैनम। दो चीजें याद रखनी है। थाइलाकॉइड इज अ सिंगल यूनिट जो आप देख सकते हो, एंड द होल bunch of it is known as the granum. Next you can see is that each granum is connected to the next granum. हर एक जो ग्रैनम है वो दूसरे ग्रैनम से कनेक्टेड तो है ही, तो ये कनेक्शन को क्या कहा जाता है? दिस कनेक्शन इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेला। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमल लैमेला। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है उसे क्या कहा है? स्ट्रोमा रीजन, और लैमेला मतलब जो कनेक्टिव लाइक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है? लैमेला। मतलब यहाँ पे हमने 3 टर्म्स की बात की। इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द कैविटी लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल यूनिट्स विच आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, एंड थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ स्टैक पाइल टू नोन एज ग्रैनम। अब ये ग्रैनम हो गया, बट ईच ग्रैनम इज इंटरकनेक्टेड टू द नेबरिंग ग्रैनम। तो ये दोनों के कनेक्शन के लिए बीच में जो ब्रिज है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेला। व्हाट इट इज कॉल्ड? स्ट्रोमल लैमेला। अब ये जो थाइलाकॉइड है, दिस थाइलाकॉइड इज गोइंग टू बी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये एक थाइलाकॉइड है, तो थाइलाकॉइड के बीच में ये जो जगह रही, इस जगह को क्या कहते हैं? ल्यूमेन। व्हाट इट इज कॉल्ड? ल्यूमेन। The place which is being enclosed by a thylakoid membrane, the space enclosed by the thylakoid membrane is known as the lumen. And thylakoid is the site where what will be present? The pigment chlorophyll. Chlorophyll जो pigment है वो कहाँ पे present है? थाइलाकॉइड में। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है यहां पे प्रेजेंट होंगे पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। नॉट ओनली क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ एक और पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड्स, राइट? तो प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो अकेला क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता, इट इज ऑल्सो ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो मेन पिगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। कहाँ पे प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग अप द सनलाइट so that it can be used up in the process of photosynthesis, because without the chlorophyll the process of photosynthesis is not possible. तो chlorophyll का function है to trap the sunlight. हम क्लोरोफिल के बारे में अगर आगे डिस्कस करें तो क्लोरोफिल में टाइप्स भी होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। इवन बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, पर वो अलग क्लोरोफिल होता है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल के बारे में अगर डिस्कस करें तो अगेन इट विल बी अ होल न्यू लेक्चर बिकॉज इट इज वेरी डिटेल्ड स्टडीज। तो अभी तक के लिए स्ट्रक्चर में आपको क्या याद रखना है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा
thylakoids, grana, that is the whole sac pile which is called granum interconnected by stromal lamella. इतने टर्म्स याद रखने. उसके बाद मैंने क्या मेंशन किया कि थाइलाकोइड जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल विल बी प्रेजेंट एज अ पिगमेंट. Chlorophyll plus carotenoids are present and they will be trapping up the sunlight for the process of photosynthesis. So the sole purpose of the chloroplast is the function of photosynthesis. Chloroplast का सबसे important function क्या है? Photosynthesis का process continue करना so that it can prepare the food for the plants.